Hello everyone, this is Sandeep Rathore again. Welcome to my channel US Recruitments. Now in this video, we are going to discuss about common interview question and answers. Uh, those are asked in the interview. Now let's start. So the first and very common question is tell me about yourself. Means explain about yourself. अपने बारे में क्या आप जानते हैं, क्या आपका एक्सपीरियंस है, or maybe some candidates let us know about the family background as well in this question. That is up to you. So we will learn about two ways to explain this question. So first is you can say my name is, and suppose let's take an example for the Robert. My name is Robert, and I'm a recruiter with 10 years of experience. I'm passionate about the recruitment industry, and in my free time, I enjoy reading books and watching web series. So you can introduce yourself in the same way. Whatever your name is, आपका नाम बताइए, आपकी जो फील्ड है वो बताइए, कितने साल का एक्सपीरियंस है वो शो कीजिए, किस चीज़ में आप पैशनेट हैं, किस इंडस्ट्री में आप वर्क करना चाहते हैं वो आप बताइए. इवन इन दी रिक्रूटमेंट एज वेल यू कैन से आईटी और हेल्थ केयर और मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, एनीथिंग यू कैन से. And whatever would be your hobbies or interest you can represent here. I hope it is clear. The first way looks interesting because you are representing your name. Even you can represent from where you belongs, like your city as well, and some other things you can include as well about your family members and your educational part also you can mention. When you are fresher, definitely I think when you're a fresher, then please mention those things. Over the experience, you have some other content to explain in the interview, so avoid when you have a good experience. अगर आप फ्रेशर हैं तो डेफिनेटली इंक्लूड कीजिए अपनी फैमिली के बारे में, अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में, अपना लोकेशन मेंशन कीजिए. I can read it for you even if you are a fresher. So my name is Robert. I'm a recruiter, and I have completed my bachelor's in technology, that is in 2023. I would like to work in the recruitment industry, and I live in New York. In my free time, I like to watch web series, and I like reading books as well. Uh, if you will talk about my family members, there are total four family members in my family. Uh, my father is a businessman, and my mother, she's a housewife, and have a younger brother as well. In this way, you can explain about your introduction or say interview. In another way, you can keep it short. When you're a professional, you can say I'm a passionate about and driven individual with a strong background in the recruitment. I bring a unique perspective and a collaborative attitude to any team I work with. So what here they wants to say, the person wants to say कि मैं बहुत पैशनेट हूँ अपने काम को लेकर, एंड ड्रिवन इंडिविजुअल विद अ स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इन द रिलेवेंट, और बहुत स्ट्रॉन्ग जो है मेरा बैकग्राउंड है किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, और मैं जहाँ भी जिस भी टीम में काम करता हूँ उसके साथ कोलैबोरेटिव रहता हूँ, उनके साथ कोऑर्डिनेशन मेरा अच्छा है. ऑल्सो मेरा एक यूनिक एम होता है काम करने का. सो यू कैन से इफ यू आर एक्सपीरियंस पर्सन. नाउ व्हाट आर योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ. यहाँ पर आपको आपकी स्ट्रेंथ के बारे में बताना है. तो हम स्ट्रेंथ यूजुअली कॉमन ही होती है, बट इफ यू वांट टू अपडेट डेफिनेटली यू कैन. सो द फर्स्ट स्ट्रेंथ इज वन ऑफ माय ग्रेटेस्ट strengths is my ability to adapt quickly to new situations. तो आप यहाँ बताना चाह रहे हैं कि मेरी जो ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है वो है किसी भी नई सिचुएशन को इजीली अडॉप्ट कर लेना. राइट. So this is the first point you can say. The another one is I'm also a great problem solver and a strong communicator. मैं एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कैपेबिलिटी मेरे अंदर है,
ऑल्सो आई एम अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर, एक अच्छा कम्युनिकेटर हूँ, टीम के साथ मेरा कम्युनिकेशन अच्छा होता है. I also have a very good communication skills. So in the second point, the person wants to explain this. I'm also highly organized and detail oriented. मैं एक ऑर्गेनाइज्ड पर्सन हूँ और एक डिटेल ओरिएंटेड पर्सन. अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. व्हाट आर योर वीकनेस? तो वीकनेस में हमें कुछ ऐसी चीजें शो करनी है दैट यू नो दैट ऑटोमेटिकली शुड बी पॉजिटिव. Let's take an example. I have struggled with time management in the past, but I have since implemented prioritization technique and time blocking to stay on track and meet deadlines constantly. यहाँ पर वो कहना चाह रहा है कि मैंने जो है टाइम मैनेजमेंट के साथ स्ट्रगल किया था पास्ट में, बट नाउ आई हैव इम्प्लीमेंटेड प्रायोरिटाइजेशन टेक्निक में. उसमें काम को क्या करता हूँ, अपने वर्क को डिवाइड कर लेता हूँ, अपने टाइम्स ब्लॉक कर लेता हूँ और उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी डेडलाइंस को मीट कर लेता हूँ. तो मैं पहले टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम थी, स्ट्रगल करता था, लेकिन अब मैंने जो है टाइम को यूज करना सीख लिया है, टाइम को ब्लॉक करना सीख लिया है, वर्क को डिवाइड करना सीख लिया और उसके थ्रू क्या करता हूँ, मैं अपने मीट्स को, अपने गोल्स को कंटिन्यूसली मीट कर लेता हूँ. Now, second is I continuously seek feedback to improve my weakness and turn them into my strength. मैं ओपन रहता हूँ, कोई मुझे अपनी वीकनेस के बारे में बताता है तो और उसको टर्न कर लेता हूँ, उसको बदल लेता हूँ अपनी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ में. नाउ वीकनेस में आप क्या चीजें ऐड कर सकते हैं? व्हेन समवन आस्क अबाउट वीकनेस, यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू शो सेल्फ अवेयरनेस एंड शेयर हाउ यू हैव वर्क टू ओवरकम देम. फोकस ऑन ग्रोथ एंड एम्प्रूवमेंट. जैसा कि हमने अभी पहले ही कहा कि सेल्फ अवेयरनेस पे आप जो है इसको रिप्रेजेंट कीजिए और बताइए कि हाँ मुझे प्रॉब्लम आ रही थी बट मैंने इसको ओवरकम कर लिया है. ग्रोथ को लेकर, अपनी ग्रोथ और अपने इम्प्रूवमेंट को लेकर यहाँ पर आपको फोकस करना है. अपनी एक्चुअल वीकनेस जो है वो यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट आई वुड से नहीं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है. और वैसे भी अगर इफ समवन नोज द वीकनेस, definitely he will implement and will figure it out and definitely convert it into the strength. I hope you understand this thing. Now, why you feel good yourself for this role? आप अपने आप को क्यों समझते हैं कि you are a good person for this role? So we can say I believe my skills and experience align with the role and I'm excited about the opportunity to contribute to them. तो आपको इसका आंसर इस तरह से देना है कि मुझे ये लगता है कि मेरी जो स्किल्स और एक्सपर्टीज़ हैं वो आपकी जॉब रिक्वायरमेंट के साथ अलाइन करती हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस अपॉर्चुनिटी के लिए और इस अपॉर्चुनिटी में कंट्रीब्यूट करने के लिए. इसलिए मैं समझता हूँ कि आई एम अ गुड पर्सन फॉर दिस रोल. राइट? So what we understand, I believe my skills and experience are very aligned with the role, and I'm very excited to work with this company or for this opportunity, and would like to contribute to your company, to your team. I'm also passionate about the company's mission and value. So whatever would be the mission and value are, I would definitely would like to work towards them. This is, you can elaborate in this way. When you ask someone, when someone asks you about why you feel good yourself for this role, now we will understand why do you want to work here. आप यहाँ काम क्यों करना चाहते हैं? सो अगर यहाँ काम क्यों करना चाहते हैं इसके लिए हमें ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा. मीन्स यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट द कंपनी, एंड जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं या इंटरव्यू दे रहे हैं, टेलीफोनिक इंटरव्यू है, मस्ट प्रिपेयर अबाउट द कंपनी. कंपनी के बारे में पढ़िए, कंपनी के बारे में नॉलेज लीजिए, कंपनी क्या करती है, क्या टीम है, किस डोमेन पर काम करती है, क्या इंडस्ट्री है, वट एवर डिटेल्स यू कैन गेट अबाउट दी कंपनी, प्लीज कलेक्ट इट. सो हम इसका आंसर किस तरह से देंगे कि वाई डू यू वांट टू वर्क हियर? आई एम हाईली मोटिवेटेड टू वर्क हियर बिकॉज ऑफ माई योर कंपनीज रेपुटेशन, वैल्यूज एज एंड मिशन. तो जो भी आपकी कंपनी की रेपुटेशन है उसके बारे में मैं जानता हूँ, आपके वैल्यूज, मिशंस क्लियर हैं और इन गोल्स के बारे में मैं जानता हूँ और इसीलिए मैं आपकी टीम का पार्ट बनना चाहता हूँ.
आई एम एक्साइटेड अबाउट द पोटेंशियल टू लर्न एंड ग्रो प्रोफेशनली। जब आपकी कंपनी इतनी अच्छी है, आपकी कंपनी की रेपुटेशन इतनी अच्छी है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट एंड पोटेंशियल एंड आई हैव द पोटेंशियल टू लर्न एंड ग्रो professionally with your company, with your organization. I hope it is clear. Now, how do you handle pressure? भाई कभी आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें हैं जब आपको मल्टीपल काम एक साथ करना है, प्रेशर आपके पास बहुत सारा आ गया है। नाउ हाउ यू कैन हैंडल द सिचुएशन? द फर्स्ट, आई प्रायोरिटाइज टास्क, break them down into smaller steps and focus on one thing at one time. तो अगर मेरे पास प्रेशर आ गया है तो इस सिचुएशन में सबसे पहले मैं जो भी टास्क हैं उनकी प्रायोरिटी सेट कर दूंगा कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर कौन सा काम मुझे कब करना है। फिर मैं उस वर्क को स्मॉलर स्टेप्स में डिवाइड कर दूंगा और एक एक काम को एक एक करके कंप्लीट करता जाऊंगा। तो अगर मेरे पास प्रेशर आएगा तो मैं इस मेथड को यूज करूंगा। आई ऑल्सो टेक ब्रेक्स टू रिचार्ज एंड स्टे पॉजिटिव। और इंसान है, मशीन थोड़ी ना है, अगर जरूरत पड़ती है तो ब्रेक्स भी लेंगे और आप खुद को रिचार्ज भी करेंगे टू स्टे पॉजिटिव। ब्रेक्स इज ऑल्सो गुड थिंग। जब आप कंटिन्यूसली 2 से 3 घंटे काम कर रहे हैं, यू शुड टेक ए ब्रेक। ब्रेक करने से आप पॉजिटिव होते हैं, रिचार्ज होते हैं और रिचार्ज करके वापस क्या कर सकते हैं, आपके काम को, आपके वर्क को कंटिन्यू आप कर सकते हैं बेटर एनर्जी के साथ। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ this is also a common question that where do you see yourself in next 5 years? So यहाँ पर आपको आपके गोल को रिप्रेजेंट करना है। आप खुद को कहाँ देखना चाहते हैं 5 साल बाद, आपको ये रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें आप ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मैं आपकी कंपनी के साथ ग्रोथ चाहता हूँ, बिकॉज you are interviewing in this company, so you can mention those things as well. So my goal is to grow and develop within the company, taking on new challenges and responsibility. तो मेरा सबसे पहला गोल ये है कि कंपनी के साथ ग्रो करना है, डेवलप करना है एंड टेकिंग न्यू चैलेंजेस एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी कंपनी मुझे न्यू चैलेंजेस देगी, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज देगी, उसके लिए मैं रेडी हूँ और मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ। In next 5 years, I hope to have advanced to a leadership role. When I have completed 5 years, after 5 years, I would expect something to be advanced to the leadership role. मैं चाहता हूँ next 5 years में मुझे एक leadership position मिल जाए। I hope. Now, what are your career goals? अब यहाँ पर हमें represent करना है अपने career goals के बारे में। So where you want to see yourself in 5 years, that is something related to career goals as well. But career goals may be different as well for the sometimes maybe career goals for the long term and the short term as well. So my career goal is to continuously learn and develop new skills that will contribute to my growth in the industry. तो मेरा पहला career goal ये है कि मैं कंटिन्यूसली लर्न करना चाहता हूँ, खुद को डेवलप करना चाहता हूँ, नई स्किल्स, ताकि मैं इस इंडस्ट्री में आगे तक ग्रो कर पाऊँ। तो ये हमारा पहला करियर गोल है। सेकंड, आई एस्पायर टू टेक ऑन द लीडरशिप रोल एंड मेक ए पॉजिटिव इम्पैक्ट। जब मैं इस इंडस्ट्री में कंटिन्यूस न्यू थिंग्स को, न्यू स्किल्स को लर्न करना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं खुद को एक लीडरशिप रोल पर ले जाऊँ और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट उसका दूँ, एक अच्छा टीम लीडर बनूँ, एक अच्छा मैनेजर बनूँ, so that I can lead the team and work towards the company growth. Now, why we should hire me? This is definitely a good question, and most of the managers ask these questions. So, what you can represent over the years I have acquired. When you're experienced, your answer should be different. When you're a fresher, your answer will be different. Now, over the years, I have acquired relevant skills and experience which I shall bring to your organization. भाई इतने साल काम करके मैंने जो स्किल्स, जो रिलेवेंट स्किल्स एक्वायर की हैं, जो एक्सपीरियंस एक्वायर किया है, वो मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ को देना चाहता हूँ, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आई हैव ऑल्सो वर्क टायरलेसली ऑन माई कम्युनिकेशन एबिलिटीज एंड टीम वर्क स्किल्स। मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ पर, अपनी टीम वर्क स्किल्स पर बहुत टायरलेसली काम किया, बहुत दृढ़ता से काम किया है, विच आई विल पुट
to use in my future career, which would be in your organization if I'm selected for this position. तो ये जो मैंने इस टीम स्किल्स सीखी है, ये जो मैंने कम्युनिकेशन सीखा है, ये चाहता हूँ कि मैं आपकी कंपनी में इम्प्लीमेंट कर पाऊँ अगर आप मुझे इस पोजीशन के लिए सिलेक्ट करते हैं तो। Now we will understand if you are a fresher, your answer would be different because you do not have experience or you do not get the you do not have acquired the relevant skills and experience. So what you can represent as I'm a fresher, I know the value of a job. If you hire me, I will give you my all potential and 100% efforts in the growth of the company. मैं एक फ्रेशर हूँ, आई नो, मुझे जॉब की वैल्यू पता है. इफ़ यू हायर मी, अगर आप मुझे हायर करते हैं, आई विल गिव यू माई पोटेंशियल एंड दी 100% एफर्ट्स इन दी ग्रोथ ऑफ द कंपनी. तो मैं अपना 100% कंपनी की ग्रोथ के लिए दूंगा. चलिए अब हम बात करते हैं व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशन. ये भी एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है. यहाँ पर जो आपको आंसर्स होते हैं वो संभल कर देना चाहिए. सो डू योर रिसर्च टू डिटरमाइन अ रीजनेबल सैलरी रेंज बेस्ड ऑन योर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस. जो भी आपका स्किल्स एंड एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी रीजनेबल सैलरी रेंज डिसाइड कीजिए. अवॉइड शेयरिंग ए स्पेसिफिक नंबर फर्स्ट एंड फोकस ऑन द वैल्यू यू कैन ब्रिंग टू द कंपनी. आप स्पेसिफिक नंबर देने से पहले आप उनको ये बताइए कि आप व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू यू कैन ऐड. बिकॉज इफ यू आर एडिंग वैल्यू in the company, in the organization, definitely salary does not matter for them. If you are doing your perfect work, if you are doing something, if you are adding values, अगर आप किसी कंपनी को वैल्यूज दे रहे हैं, आपकी स्किल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप टीम मैनेज कर सकते हैं, आप अकाउंट्स क्लाइंट्स मैनेज कर सकते हैं, आप स्पेसिफिकली चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, आप उसको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक उसको वैल्यू दिखा रहे हैं कि अगर मैं ऐड होता हूँ तो आपकी कंपनी में एक वैल्यू ऐड होगी. सो आई डोंट थिंक कि किसी कंपनी के लिए कोई सैलरी बार या सैलरी कैप होता है ऐसा. अगर आप परफेक्टली अगर आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं तो डेफिनेटली डू नॉट फोकस ऑन नंबर. द कंपनी विल डेफिनेटली आस्क what kind of compensation you would be expecting. So focus on value rather than a specific number. Be prepared to negotiate and consider other benefits beyond salary. Sometimes other companies has health benefits and other benefits as well. So you can consider those benefits as well and be prepared for the negotiation. Do you have any question for us? Yes. यहाँ पर show your interest and ask insightful questions. ठीक है, अपना इंटरेस्ट शो कीजिए, अच्छे क्वेश्चंस पूछिए. फॉर एग्जांपल, व्हाट द कंपनी कल्चर लुक लाइक. आपकी कंपनी का कल्चर कैसा है. व्हाट आर द बिगेस्ट चैलेंजेस फॉर दिस रोल. भाई क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है. इफ यू आर अबाउट टू ज्वाइन एज अ मैनेजर, if you are on a senior role or if you are on a particular skill set they are hiring you. So try to understand कि भाई क्या challenges आ रहे हैं और उन challenges को समझ के you can represent your value as well. You can add your value here, that you can say if they are facing challenges in the team management, you can say I have expertise in the team management and I can definitely add value. आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दी थिंग्स. आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं. स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी प्रॉब्लम, प्लीज़ कमेंट मी. एक फ्रेशर्स एक्सपीरियंस सभी लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं. और भी इंटरव्यूज़ के वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो उसके लिए आपको जो है डिटेल्स आती रहेंगी. प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो. बाय, टेक केयर.